Hello everyone, I welcome you back to my channel and my name is Christina Bosumatari. Please do remember my name. My name is Christina Bosumatari and today you can see here I have brought an important Western political thinker and that is what? And that is Hobbes. Okay, so see I have brought an important question that was being asked in 2004 related to the Thomas Hobbes. That is the Hobbes was more an individualist. We will know about this in this along with this explanation. Okay, and see I will be your educator for this subject also, that is the political theory. As you can see in the thumbnail that I have cleared my NET examination and right now I am an assistant professor in the Department of the Political Science. So I have a good hold on this subject and do not worry, I will be helping you in understanding all the concepts that will be related under the political science and international relations. So let's talk about Thomas Hobbes in a few lines first, and then we will know about his state of nature and the social contract theory. Let's move to our explanation right now. And I'm really sorry, I will not be able to explain it in Hindi right now. I'm working on it. So let's go. So before understanding about the writings of the Hobbes, we have to know a few lines about his brief historical background, why he wrote about the state of nature and also about the social contract theory. So, see, first what we can see, Hobbes was once a tutor to King Charles II of England. Just remember this, and he was born in 1588, remember, at the time of what? Invasion of the Spanish Armada. See, Spanish Armada means what? That was an invasion of 130 ship naval fleet that is dispatched in 1588 as part of a planned invasion of the England. So this is a kind of background, and we can see that he even saw the civil war in England and he was affected by it, and his conclusion was that the salvation of the country lay in having a ruler. See, that's why you will see about the sovereign, that is like the powerful ruler, who will be the king of the social contract. See, remember here, due to this situation, he always wanted to bring a country under a powerful ruler having the absolute power, so as he or the sovereign alone could save England from anarchy, that is the absence of government. Remember, anarchy का meaning क्या होगा? That means like absence of the government. खाली वहाँ पे government नहीं है. So that's why he understood that in order to bring the England in a disciplined manner, he wanted to have a ruler that is having the absolute power. So moving to the next slide, what we have is that always remember about the famous book he has written, that is the Leviathan, which was published in 1651. Very important. So please focus on this. And if you have not subscribed to my channel, do subscribe it. Like, comment and share it. Very important for me. Now see, we will directly go to the state of nature here. Let me change the color right now. Chalo. We will know about his state of nature. Hobbes has given a detailed picture of the people in the state of nature. We will come to know it in the later few minutes, and how the same was ended by means of a social contract. See, very simple. You don't need to read everything, but it is my duty to write the important lines that will be helpful for your writings. First, what you have to understand here is that you have to understand about the state of nature. So why he has written about the people in that perspective or in the background, and we will also know how, after describing about the state of nature, how he mentioned about the social contract. So see, according to him, what? The people in the state of nature, they were what? Remember, they were very selfish and what? Self-seeking. Only खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में देखना. People were like that. Then in a second, उन लोग का actions क्या था? अपना सेल्फ इंटरेस्टेड के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने आप के लिए, अपने फायदे के लिए था. ठीक है. देन द मोटिव ऑफ गेन एंड द विश टू सेटिस्फाई देयर ओन एपेटाइट and desires was the motive behind all human action. And man by nature, by nature क्या था? Was anything. जो मतलब
सब कुछ था, लेकिन वो लोग क्या था, सोशलाइज्ड नहीं था या सोशल एनिमल. ओके, वहाँ पे उन लोग का डिसिप्लिन नहीं था. ओके, अकॉर्डिंग टू द होब्स. नाउ सी अगेन, ही फाउंड नथिंग बट ग्रीप इन द कंपनी ऑफ हिज fellows. Very important. Then what we will see again here is that all men were equal. Okay, सब समान था, लेकिन selfish और rapacious था. See, the state of nature versus state of war, war of each against all. Okay, हमेशा आपस में झगड़ा अपने फ़ायदे के लिए सब था. ठीक है. देन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये क्या था स्टेट ऑफ नेचर में, इट वॉज अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल फियर, डरना हमेशा, और देयर वॉज द कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ द वायलेंट डेथ. वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस. एंड व्हाट लाइफ क्या था, लाइफ ऑफ मैन वॉज सोलिटरी, लोनली, गरीबी, ब्रूटिश, नास्टी एंड शॉर्ट. बहुत खराब था उन लोग का स्टेट ऑफ नेचर में पीपल. ठीक है. एंड सी हियर देयर वॉज फियर, डरना. ओके, आपस में ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था, डाउट करना आपस में. एंड दैट वाज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट, ओके, एग्जाम्पल क्या था कि वो लोग अपना घर को बंद करता था, दरवाजे को ताला मारता था, कब, रात को भी. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू हॉब्स वी कैन फाइंड 3 प्रिंसिपल्स ऑफ क्वारल. वहाँ पर झगड़ा क्यों आता था, वहाँ पे क्या क्या था, देख तो एक कंपटीशन के लिए, जीतने के लिए. ओके, आई हैव टू बी द फर्स्ट अमंग ऑल. एंड सेकेंड डिफिडेंस. ओके, एक तो ग्लोरी, अपना वो ग्लोरी, प्राइड के लिए. देन रिमेंबर हियर देयर वाज एब्सेंस ऑफ लॉ, लॉ नहीं था, न्याय नहीं था, संपत्ति समान नहीं था, एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग. ओके, राइट गलत सच में कुछ अंतर नहीं था, और नो नोशन ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस. ओके, न्याय अन्याय में कुछ फर्क नहीं था. एंड देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड द बैड. ओके, अच्छा और बुरा में कुछ भी डिफरेंसेस या ओके डिस्टिंक्शन नहीं था. सो देयर वाज ओनली फ्रॉड, झूठ करना, ओके, आपस में लड़ना, अपना ताकत दिखाना, वो सभी उन लोगों का क्वालिटी था. ओके, यू रिमेंबर दिस. देन व्हाट अकॉर्डिंग टू हॉब्स, man undoubtedly wanted peace, but his fear of others, his anxiety to return what he already had, and never-ending desire for acquiring more led him to continuous conflict with the neighbors. See, remember यहाँ पे क्या बोला है कि ओके ठीक है, वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में आपस में ट्रस्ट नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, मार पीट झगड़ा ये सब था, लेकिन उन लोगों को भी एक समय के लिए क्या था, शांति चाहिए था. लेकिन अपना एंजाइटी, अपना वो लाभ के लिए, फ़ायदा के लिए वो लोग क्या था कि झगड़ा करता था आपस में, सो दैट वो लोग टॉप मोस्ट में रहे. ठीक है. Then only consideration of his private interest could move him. Hobbes believed that, Hobbes को क्या विश्वास था कि एक state of the nature, okay, that in the state of the nature, laws of nature, certain laws govern the conduct of human beings, and he called them the laws of nature. So उन state of the nature में एक क्या था, laws of nature होना चाहिए था कि उन लोगों को control करने के लिए, discipline लाने के लिए. और हम लोग बाद में समझेंगे कि क्यों हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात किया, उसने क्यों उसका ओके ओरिजिनल क्या उसका कंटिन्यू उसने ओपनिंग किया, हम लोग इसके बारे में जानेंगे. वी विल नो अबाउट व्हाई द हॉब्स he discovered or he wrote about the social contract theory after defining the people, okay, nature of the people that was in the what state of the nature. So remember, the laws of the nature were laws of prudence, justice, अच्छे के लिए, and those laws demands that everybody should aim at and strive to secure the peace. अभी हम लोग जानेंगे कि ये law बनाया गया क्योंकि वहाँ पे peace और discipline लाने के लिए. ठीक है. Now after few lines we will know about the social contract theory. अच्छे से फोकस करना. ठीक है. और फिर से अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सो दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड द न्यू videos that I brought, you will get the notification. Okay, moving to our lecture. Men in concert with others should willingly give up the natural rights. अभी क्या बोला कि हम लोग इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे. अभी आपस में डिसिप्लिन पीस लाने के लिए क्या था, आपस में एक यूनियन होना चाहिए. ओके, विलिंगली अपना जो राइट्स है उसको समान और ग्रुप में देना, एबा स्टेट ऑफ नेचर एबा एक सॉवरेन को उसको सरेंडर करना. ठीक है. एंड दे शुड एस्टूडियसली कीप द कॉन्ट्रैक्ट्स. वो कॉन्ट्रैक्ट जब सॉवरेन के साथ में वो लोग करेंगे तो उसको निभाना भी है अच्छे से. एंड दे शुड शो ग्रैटिट्यूड, ओके, और रिटर्न बेनिफिट्स फॉर द बेनिफिशेंट्स. वेरी गुड, सिंपल. सो यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोग ये पढ़ लीजिए. ठीक है, ये बहुत लंबा है, लेकिन इसमें क्या है कि ओके सी क्या करता है कि इसमें कि हम या आई मीन्स हम अपनी अथॉरिटी को किसको सौंपूँ, दैट इज द सॉवरेनिटी
और द असेंबली ऑफ द मैन, और वो क्या करेगा, हम लोगों के ऊपर ओके वो क्या करेगा कि काम करेगा डिसिप्लिन लाने के लिए। बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड हियर। सी, एंड दिस इज हाउ दैट स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कैसा वो स्टेट अभी फॉर्म हुआ अकॉर्डिंग टू द हॉब्स, कि वो अपने राइट्स, कि हम पीपल जनता अपने राइट्स को एक अथॉरिटी की सौंपे ओके और वो अथॉरिटी क्या करेगा कि हम लोगों के अच्छे के लिए काम करेगा ओके हम लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा अथॉरिटी और क्या एक सिटीजन्स के ऊपर, सो दैट वहाँ पे पीस और क्या है एक की सिक्योरिटी हो जाए वो स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। और दिस इज हाउ स्टेट या स्टेट कैसे आया हम लोगों को इससे पता चलता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। द सोवरेन वॉज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोगों को सोवरेन के बारे में जानना है। सी, द सोवरेन दैट मीन्स ऑल पावरफुल, वो क्या था, वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पार्टी नहीं था, लेकिन वो सबसे ऊपर था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या था, लीडर। ऐसे सोचो, एंड द पीपल ऑथोराइज कि वो सोवरेनिटी को पीपल ने अथॉरिटी दिया एंड गिव ऑफ द राइट, अपना राइट दिया सो दैट वो सोवरेन क्या गवर्न कर सके। ओके, नाउ दे कुड नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट ऑफ फियर। वो क्या सिटीजन्स या पीपल क्या था स्टेट ऑफ नेचर में या दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, वो क्या कर सकता था कि अपना कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ नहीं सकता बिकॉज वो डर के ऊपर सेंटिमेंट, वो सेंटिमेंट ऑफ फियर के ऊपर लागू था। नाउ दे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द लाइव्स एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट। क्या था, अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अपना लाइव्स को प्रोटेक्ट करना। एंड दे हैड ऑथोराइज्ड द सोवरेन एंड ऑफर्ड हिम ऑल द राइट्स एंड हैड नॉट रिजर्व्ड टू देमसेल्व्स द राइट टू ब्रेक द टाइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इजी, अपना पावर अपना अथॉरिटी को किसको दिया, सोवरेनिटी को, और वो लोग वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता था कभी भी। ओके, नाउ देखो यहाँ पे क्या बोला है कि if any individual breaks the contract the sovereign could award him capital punishment। अगर किसी ने वो कॉन्ट्रैक्ट को रूल्स एवं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया तो क्या होगा कि वो सोवरेन उसके ऊपर पनिशमेंट दे सकते हैं, और दैट इज द कैपिटल पनिशमेंट। वेरी इजी, रिमेंबर दिस। और यहाँ पे क्या दिया है कि होप्स डिप्राइव द पीपल ऑफ द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द सोवरेन। वो पीपल क्या था, वो सोवरेन के ऊपर वो क्या लड़ाई नहीं कर सकता था, रिवोल्ट नहीं कर सकता था। एंड सोवरेन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। लॉ का मेन सोर्स कौन था, लॉ को कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन कमांड देगा, सोवरेन। नाउ होप्स अलाउड द इंडिविजुअल्स टू डिसोबे द कमांड्स ऑफ द सोवरेन ओनली व्हेन हिज लाइफ वाज इन डेंजर। ना अभी वो है कि सिटीजन्स या पीपल वो कॉन्ट्रैक्ट एवं वो लॉ को डिसोबे कर सकता था, मना कर सकता था, कब, जब उसका लाइफ डेंजर में था, जब वो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग। और यहाँ पे हम लोग का खत्म होने वाला है। सोवरेन वाज व्हाट, इनएलिनेबल, अलग नहीं कर सकता था, इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं कर सकता था। ओके, सोवरेनिटी कुड बी वन पर्सन और इन असेंबली ऑफ द पर्सन एंड लॉ वाज द कमांड ऑफ द सोवरेन। हम लोग डिस्कस कर दिया। ऑल मेन हैड एग्रीड टू रिनाउंस देयर राइट्स बट द सोवरेन हैड रिनाउंस नथिंग। देखो यहाँ पे क्या है कि ऑल मेन ने अपना राइट्स को रिनाउंस करके सोवरेन को दिया, लेकिन सोवरेन ने कभी भी अपने राइट्स को क्या था, वो अब कभी भी उसने गिव अप नहीं किया। और सोवरेन वाज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोल दिया। एंड he possessed the unlimited right of the nature and although he derived his authority from the people he was under no compulsion to them। वो compulsion नहीं था people के ऊपर। and he could do no wrong, it should be no wrong, okay, and he could do no injury to his subject, okay, वो अपना subjects के ऊपर वो क्या खराब काम नहीं कर सकता था, injured नहीं दे सकता था, because क्या he did, because whatever he did was the authority of his subject, क्योंकि वो subjects ने already अपना authority किसको दिया, sovereign को। so वो सोवरेन का राइट होता है, वो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना सब्जेक्ट्स का ख्याल रखे, ओके, उन लोग को प्रोटेक्ट करे, जस्टिस दिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज हियर। एंड the contract was social contract, good, and that is between individuals to give up their natural rights and vest them in the sovereign। so very easy। now क्या बोला गया है कि होप्स was opposed to the division of powers or mixed government। so होप्स को वो अच्छा नहीं लगता था कि वो अपोज करता था कि वहाँ पे पावर्स का डिवीजन होना नहीं चाहिए था, वो पावर एक ही सोवरेन या असेंबली ऑफ द मैन के ऊपर होना चाहिए था। उसने क्यों बोला, क्योंकि उसको लगा कि अगर उसमें डिवीजन नहीं होता तो क्या था, इंग्लैंड में क्या होता, वो सिविल वॉर भी नहीं होता अगर उसमें एक ही पावर और एक ही सोवरेन होता तो। सो अभी हम लोग लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि होप्स वाज क्रिटिसाइज, कि उसको किसी ने क्रिटिसाइज किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि होप्स वाज क्रिटिसाइज व्हाट, उसने वेरी
काला या वेरी क्या ग्रे एवं डार्क पिक्चर दिया स्टेट ऑफ नेचर और पीपल के बारे में. एंड उसने क्या किया कि एंड देन इवॉल्विंग सिविल सोसाइटी थ्रू ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सी स्टेट ऑफ नेचर का पीपल के बारे में वो खराब लिख के क्या किया उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फॉर्म किया. लेकिन लास्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग का जो फर्स्ट में क्वेश्चन जो था कि होब्स वाज एन एंटी इंडिविजुअलिस्टिक कमेंट, वो जो 2004 में आया था, इसमें क्या है कि बोल सकता है कि लास्ट में कि होब्स वो इतना एंटी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं था. ओनली वो इंडिविजुअल के बारे में एवं खुद के बारे में सोचना ऐसा नहीं था. क्योंकि यहाँ पे क्या देखा है, बिकॉज द सॉवरेन क्या था, सॉवरेन हैड टू डिलीवर द गुड्स टू द इंडिविजुअल्स बाय प्रोटेक्टिंग. इसमें मतलब हाँ वो सॉवरेन के ऊपर बोला गया है कि सॉवरेन को उसने ज़्यादा अथॉरिटी दिया था ना. तो किसी ने क्या बोला कि होब्स एंटी इंडिविजुअलिस्टिक था. इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स ओनली सॉवरेन के बारे में उसने मतलब वो ज़्यादातर क्या पावर दिया. लेकिन उसमें हम लोग इतना क्या था कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बोला कि सॉवरेन क्या था, सॉवरेन इतना लो एब्सोल्यूट पावर ऐसा लेता था ऐसा नहीं है. उसमें क्या बोला गया है कि सॉवरेन का रोल भी था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि क्या अपना सब्जेक्ट एवं जनता के अच्छे के लिए करना और उसको प्रोटेक्ट करना. ओके, संभाल के रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस आर द फ्यू लाइन्स दैट आई हैव टॉक अबाउट द होब्स एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द होब्स, राइट. सो मुझे माफ़ करना अगर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रही हूँ बोलना. एक्सप्लेनेशन में थोड़ा वो रुक जाती हूँ मैं, बिकॉज इंग्लिश से हिंदी वो माइंड में कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम लगता है. एंड okay, please forgive me for that, and thank you so much for your love and support, and please do subscribe to my channel and like it, and do comment if you want more subject or more explanation or discussion on the political theory or any political science or international relation के अंदर में जितना टॉपिक है. अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिए, मैं ज़रूर करूँगी. एंड till then, stay tuned to my channel. Bye bye and take care.